Good morning, dear students. I hope that all of you are getting the chapter security properly. You are understanding it. And in the previous class, we have already done the meaning of security. We have done the traditional notion of security. And in that topic, you come to know that in traditional notion of security, most emphasis was given to the external security. बहुत बार यही समझा जाता था कि सुरक्षा के लिए हमें बाह्य खतरों से बचे रहना आवश्यक है. हमेशा ये माना जाता था कि कोई देश दूसरे देशों पर आक्रमण करेगा और वो हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल देगा. इसी के साथ साथ जो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी जब हम कर रहे थे, ऑन दैट टॉपिक आई टोल्ड यू दैट सम ऑफ द ओपिनियंस ऑफ या components of traditional notion of security. While doing that, you came to know that if we got an attack, we have some options. The first option is to surrender. The another is to prevent the other side from attacking by promising to raise the cost of war. And the third component is balance of power. We have another component also that was considered the fourth component, and that was known as the alliance building. Most of these way help us in maintaining the security, but we have some internal security matters as well. But during the olden days, it was considered that internally, more or less, most of the countries are being considered secured. Due to the Cold War rivalries, most of the countries were fearful that they may got an attack from the rival power. You all know that after the First World War, after the Second World War, Cold War was started and the world was divided into two power blocks, the Eastern Bloc as well as the Western Bloc. So after the end of Second World War, the main concern of security was the external security. There were some countries, those who were colonies after the Second World War, and they were fearful that they have to fight their freedom struggle, as well as their masters were fearful that a freedom struggle will be started in their country. And all those countries, those who got independent, they were also fearful that they may be recaptured by their former masters. तो पुराने समय में सुरक्षा में सिर्फ बाह्य सुरक्षा को अत्यधिक महत्व दिया गया. आंतरिक सुरक्षा शीत युद्ध की वजह से काफ़ी हद तक सही मानी गई, सिक्योर्ड मानी गई, क्योंकि विश्व दो शक्ति समूहों में बढ़ चुका था और हर एक शक्ति समूह को इस बात का डर था कि उनके विरोधी खेमे के लोग उन पर अटैक ना कर दें. तो इस वजह से आंतरिक रूप से देशों ने मजबूत प्रक्रियाएं अपनाई. दूसरे जो ग्रुप के देश थे वो देश थे जो किसी न किसी के उपनिवेश थे. इन उपनिवेशों में भी एक स्थिति थी कि ये हमेशा अपने जो इनके मास्टर्स थे उनके अगेंस्ट लड़ाई लड़ना चाहते थे, तो ये आंतरिक रूप से मजबूत थे. तीसरा वो देश जो अभी अभी आज़ाद हुए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, उनको हमेशा एक डर सताता था कि उनके जो मास्टर्स हैं, उनके जो पुराने देश हैं जिनके वो कब्ज़े में थे, कहीं वो उन पर वापस से कब्ज़ा ना कर लें. तो मोर और लेस ज़्यादातर देशों में जो है वो आंतरिक सुरक्षा को संपूर्ण माना गया. आज हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक की, एंड दिस न्यू टॉपिक इज़ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन. In
traditional security, there is a recognition that cooperation in limiting violence is possible. These limits relate both to the ends and the means of war. It is now an almost universally accepted view that countries should only go to war for the right reason, primarily for the self-defense or to protect their people from genocide. तो जहाँ तक परंपरागत सुरक्षा की अवधारणा है, उसमें यह माना गया है कि अब कोई देश किसी दूसरे देश पर बिना वजह आक्रमण नहीं करता है। यानी आक्रमण के अपने आप को बचाने की वजह से हम सेल्फ डिफेंस के लिए लड़ सकते हैं या अपने लोगों को बचाने के लिए लड़ते हैं। आज के टाइम में ज़्यादातर देश ये मानते हैं कि वॉर मस्ट बी अवॉइडेड। वॉर मस्ट ऑल्सो बी लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ मीन्स दैट आर यूज्ड। Armies must avoid killing or hurting the non-combatants as well as the unarmed and surrendering combatants. तो अब अक्सर ये माना जाता है कि अगर युद्ध होता भी है तो जो सरेंडरिंग आर्मी है, जो छोड़ रही है युद्ध को, उन पर अटैक नहीं किया जाता। They should also be excessively violent. They shouldn't be excessively violent. Force must in any case be used only after all the alternatives are failed. आज एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि अगर कोई साधन बिल्कुल ही ना बचे तब सिर्फ युद्ध को बढ़ावा दिया जाता है। Traditional view of security do not rule out other forms of cooperation as well. परंपरागत सुरक्षा में जहाँ तक सहयोग की बात थी, उसके अन्य साधन भी हैं। The most important of these are disarmament, arms control, and confidence building. Disarmament requires all states to give up certain kinds of weapon. For example, in 1972, Biological Weapon Convention, which is known as BWC, and in 1992, Chemical Weapons Convention, which is known as CWC, banned the production and the possession of these weapons. तो परंपरागत सुरक्षा में जब कोऑपरेशन की बात आती है तो सबसे पहली बात आती है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। यानी देशों को ज़्यादातर अपने जो वेपन्स हैं, जो उनके हथियार हैं, उनको कंट्रोल करना है। 1972 में बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन था, जिसमें किसी भी तरह के जो बायोलॉजिकल वेपन होते हैं, जो जीवाणु फैलाए जाते हैं, उन पर रोक लगाई गई। 1992 में जो केमिकल वेपन्स हैं, यानी किसी भी तरह की जहरीली गैसें या इन सब को बैन कर दिया गया। कोई देश अब इस तरह के कोई वेपन्स ना बनाता है ना अपने पास रखता है। More than 155 states acceded to BWC and 181 states acceded to CWC. Both convention included all the great powers. बहुत सारे देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि BWC यानी बायोलॉजिकल वेपन एंड केमिकल वेपन्स नहीं रखे जाने चाहिए, और उन्होंने इस पर अपने हस्ताक्षर किए। But the superpowers, the US and Soviet Union, didn't want to give up the third type of weapons of mass destruction, namely the nuclear weapons. तो इन दोनों तरह के हथियारों पर तो रोक लग गई, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स पर रोक नहीं लगी। और जहाँ तक देखा जाए, आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है कि सम टाइम वेपन ऑल्सो मेंटेन पीस। यानी जब से न्यूक्लियर वेपन्स बने हैं तब से दुनिया को किसी विश्व युद्ध का सामना नहीं करना पड़ा। आर्म्स कंट्रोल रेगुलेट्स द एक्विजिशन और डेवलपमेंट्स ऑफ वेपन। दूसरा, द एंटी ब्लास्टिक मिसाइल विच इज़ नोन एज ABM ट्रीटी इन 1972 tried to stop United States and Soviet Union from using the ballistic missile as a defensive shield
to launch a nuclear attack. While it did allow both the country to deploy a very limited number of defensive systems, it stopped them from large-scale production of those systems. तो जहाँ तक आर्म्स कंट्रोल की बात है, सुपर पावर्स को भी एंटी ब्लास्टिक मिसाइल्स बहुत कम नंबर में रखने की आज़ादी है. As we noted in Chapter 1, the US and Soviet Union signed a number of other arms control treaties, including a Strategic Arms Limitation Treaty II, which is known as SALT II, and Strategic Arms Reduction Treaty. इसके अलावा the Nuclear Non-Proliferation Treaty in 1968 was an arms control treaty in the sense that it regulated the acquisition of nuclear weapons. तो जहाँ तक बहुत सारे देश हैं, स्पेशली जो सुपर पावर्स हैं, वो उन्होंने भी जो आर्म्स कंट्रोल है इसमें अपनी मदद की है. NPT, अगर आपको याद हो, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टेस्ट बैन ट्रीटी, इसके तहत भी न्यूक्लियर वेपन्स ना रखने की गुजारिश की गई थी. But it didn't abolish the nuclear weapon, rather it limited the number of countries that could have them. अब जो देश NPT पर साइन कर चुके हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स ना रखने के लिए वचनबद्ध हैं. ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ऑल्सो एक्सेप्ट्स द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. और तीसरा जो वॉर अवॉइड करने का तरीका है वो क्या है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग. कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच the countries share ideas and information with their rivals. They tell each other about their military intentions and, up to a point, their military plans. This is a way of demonstrating that they are not planning a surprise attack. They also tell each other about the kind of forces they possess, and they may share information on where those forces are deployed. In short, confidence building is a process designed to ensure that rivals do not go to war through misunderstanding or misperception. तीसरा जो तरीका है वो युद्ध से बचने का वो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यानी एक दूसरे देशों को अपनी सेनाओं की लोकेशन, अपनी सेनाओं की स्थिति के बारे में बताना, ताकि जो कोई दूसरा देश है वो किसी गलत फहमी में आकर दूसरे पर अटैक ना कर दे. ओवरऑल, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी आर प्रिंसिपली कंसर्न्ड विद द यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस. इन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, force is both the principal threat to security and the principal means of achieving security. तो बच्चों, आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन ट्रेडिशनल नोशन, अपरंपरागत सुरक्षा. परंपरागत सुरक्षा में जो मुख्य खतरा था वो युद्ध है, लेकिन अपरंपरागत सुरक्षा में जो मुख्य खतरा है वो सिर्फ युद्ध नहीं है. Non-traditional notion of security go beyond the military threats to include a wide range of threats and the dangers affecting the conditions of human existence. They begin by questioning the traditional referent of security. In doing so, they also question the other three elements of security. आज जब हम अपरंपरागत सुरक्षा की बात करते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है दैट व्हाट इज़ बीइंग सिक्योर्ड. इसमें भी 3 तथ्य हैं. पहला है व्हाट इज़ बीइंग सिक्योर्ड, किसकी सुरक्षा होनी है, फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ थ्रेट्स, खतरे के स्रोत क्या हैं, एंड थर्ड इज़ अप्रोच टू सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए हमारा नज़रिया क्या है. When we say referent, we mean security for who. यानी आज के समय में अगर सुरक्षा की बात आती है तो सबसे पहली सुरक्षा किसकी, यानी यहाँ पर रहने वाले मनुष्यों की.
In the traditional security, the referent was state. अगर हम परंपरागत सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें जिसको बचाया जाना था वो था राज्य, state with its territory and governing institutions. In the non-traditional conception, the referent is expanded. When we ask security for who, the proponents of non-traditional security reply not just the state but also the individual or the communities or indeed all of mankind. अगर हम अपरंपरागत सुरक्षा की बात करते हैं तो इसमें जो रेफरेंट है यानी जिसके लिए सुरक्षा की बात है वो कौन है? न सिर्फ राज्य बट उस राज्य में रहने वाले सभी लोग, सभी इंडिविजुअल्स और उस राज्य में रहने वाली मानवता. नॉन ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी हैज़ बीन कॉल्ड ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी. इसलिए अगर हम अपरंपरागत सुरक्षा की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली बात आती है ह्यूमन सिक्योरिटी यानी मनुष्यों की रक्षा. ह्यूमन सिक्योरिटी इज़ अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट. अगर आपने पुराने समय में कहावत सुनी होगी तो उसमें ये था कि देश नहीं जाना चाहिए चाहे जान चली जाए, 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे चाहे सर कट जाए. क्या आप ये मानते हैं कि अगर सर कट गया तो हम ज़मीन बचा पाएंगे? तो इन द सेम वे जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो किस पर प्रेफर करती है, किस पर जोर देती है? वो देती है ह्यूमन सिक्योरिटी पर. इट इज़ नोन एज द प्रोटेक्शन ऑफ पीपल मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट. कि अगर लोग सुरक्षित रहे तो हम अपनी कंट्री भी बचा लेंगे. ह्यूमन सिक्योरिटी एंड स्टेट सिक्योरिटी शुड बी एंड ऑफन आर द सेम थिंग. अगर मनुष्य बचेंगे तो देश बचेगा. बट द सिक्योर स्टेट डू नॉट ऑटोमेटिकली मीन द सिक्योर पीपल. लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि राज्य की सीमाएं अगर बची रहेंगी तो इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं है कि सभी लोग बच गए. प्रोटेक्टिंग सिटीजन फ्रॉम फॉरेन अटैक मे बी नेसेसरी कंडीशन फॉर सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल बट इट इज certainly not a sufficient one. Indeed, during the last 100 years, more people have been killed by their own government than by the foreign armies. आज अगर आप देखें तो राज्यों की सीमाएं तो सुरक्षित हैं. क्या हज़ारों लोग अपने देश में राजद्रोह में, देशद्रोह में नहीं मारे जाते? क्या खुद की आर्मी से और पुलिस से झड़प में लोग नहीं मारे जाते? All proponents of human security agree that its primary goal is the protection of individual. There are the differences about precisely what threat individual should be protected from. इस बात पर सब सहमत हैं कि मानवता को बचाया जाना चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि किस चीज़ से बचाया जाना चाहिए. The proponents of narrow concept of human security focus on violent threats to individual or, as former UN Secretary General Kofi Annan puts it, the protection of communities and individual from internal violence. अगर हम सूक्ष्म रूप में देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि जो कोफी अन्नान ने भी कहा, जो UN के सेक्रेटरी जनरल हैं, कि कम्युनिटीज़ और इंडिविजुअल को आंतरिक वायलेंस, आंतरिक हिंसा से बचाया जाना चाहिए. लेकिन जो ब्रॉड कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं, दे आर्ग्यू दैट द डिजीजेस, हंगर, नेचुरल डिजास्टर्स आर ऑल्सो अ थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग बिकॉज दीज किल far more than war. Genocide and terrorism, etc., are also the sources through which the people to be protected.
Human security policy, they argue, should protect the people from these threats as well as from the violence. वो ये मानते हैं कि लोगों को भूख से, बीमारियों से, गरीबी से, टेररिज्म, आतंकवादियों से, इन सब से भी बचाया जाना चाहिए। सिर्फ हिंसा से बचाया जाना काफ़ी नहीं है। In the broadest formulation, the human security agenda also concerned about the economic security, threats to the human dignity. Put definitely, the broadest formulation stresses has been called the freedom from want and freedom from fear. जो अपरंपरागत सुरक्षा की बात करते हैं, उनके हिसाब से मनुष्यों की सुरक्षा फ्रीडम फ्रॉम वांट होनी चाहिए, यानी उनको जो जितना बेसिक चाहिए वो उनके पास हो। सेकंड इज़ फ्रीडम फ्रॉम फियर, कल क्या होगा, क्या कल हम मारे जाएंगे, क्या कल हम रहेंगे, इसके बारे में भी लोग सुनिश्चित हों। द अनदर कंपोनेंट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी इज़ द ग्लोबल सिक्योरिटी। आपको पता है जो अपरंपरागत अवधारणा है वो ग्लोबल सिक्योरिटी की भी बात करती है। ग्लोबल सिक्योरिटी, यू नो दैट वी आर इन द ग्रिप ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, हेल्थ एपिडेमिक्स लाइक एड्स एंड लाइक स्वाइन फ्लू, लाइक बर्ड फ्लू, और अब तो आपके सामने एक नया थ्रेट है, दैट इज COVID-19. No country can resolve these problem alone. और अपरंपरागत सुरक्षा के जो ये खतरे हैं, इनमें कोई भी देश अकेला अपने आप से इनसे नहीं लड़ सकता। And in some situation, one country may have disproportionately bear the brunt of global problem such as environmental degradation. कि अगर अपरंपरागत सुरक्षा के कुछ खतरे जो हैं उसमें कुछ देशों को तो उस चीज़ के लिए भी नुकसान उठाना पड़ेगा जिसके लिए वो जिम्मेवारी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, if a sea level rise 1.2 meter, that would flood 20% of Bangladesh, the indeed most of Maldives, and threaten to nearly half of the population of Thailand. Since these problems are global in nature, international cooperation is very important to deal all such issues. तो अपरंपरागत सुरक्षा में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए हर देश को तैयार रहना है। जैसे कि अभी बात हो रही है ग्लोबल वार्मिंग की। अगर सी लेवल 1 या 2 मीटर बढ़ा तो बांग्लादेश 20% डूब जाएगा, मालदीव लगभग ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा थाईलैंड की आधी पॉपुलेशन को रहने की जगह नहीं होगी। सिंस ये प्रॉब्लम जो है वो ग्लोबल है, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है, विच इज़ यू नो दैट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अचीव। और इन मामलों में सबकी एक मत, एक राय हो जाना, बहुत जल्दी होना ऐसा संभव नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, वी हैव डन द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें खतरे का स्रोत क्या था, हमेशा युद्ध। दूसरा हमने किया इंटरनल सिक्योरिटी, ट्रेडिशनल इंटरनल। इसमें आपने जाना कि इंटरनली बहुत सारे देश अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं, स्ट्रॉन्ग मानते हैं। तीसरा जो हमने किया ट्रेडिशनल नोशन, दैट इज़ नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। और इसमें आपको ये पता लगा कि खतरे के स्रोत केवल बाहर ही नहीं हैं, केवल सैनिक ही नहीं हैं। आज हमारे सामने आतंकवाद के रूप में, आज ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, आज बीमारियों के रूप में ऐसे बहुत सारे खतरे हैं
जिनके लिए कोऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। I hope that I have made myself clear, although topic is bit confusing. So please prepare notes on this chapter. Otherwise, everything will be intermingled and it will be very difficult for you to understand the topic. तो प्लीज़ क्वेश्चन आंसर साथ साथ करते रहिए, नोट्स बना लीजिए, अदरवाइज़ बाद में ये चैप्टर बिल्कुल भी लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा, लर्न करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो नोट्स साथ साथ बनाएं। थैंक यू वेरी मच।